Students, now I am going to teach you another pronoun, that is reciprocal pronoun. About reciprocal pronoun, it is considered that this is used for reciprocal relationship. What is reciprocal relationship? The relation between two persons or the relation between more than two persons. Each other and one another. These two pronouns are called reciprocal pronoun. Each other is used only two persons or things, and one another is used more than two persons or things. For example, the two girls love each other. When you are writing here the two girls love one another, तो गलत होगा. In the same way, we all love one another. This is right. But when you write we all love each other, this is not correct. This is wrong. One another is correct, because one another is used for more than two persons and each other is used for not more than only two persons. Some exercise could be given. The two men struck one another. Here one another is wrong. Each other. They all love each other. Here each other is wrong, because they refers to the to more than two persons. तो इसलिए यहाँ क्या होगा? One another. Raman and Meena like one another. Here is only two persons. One another is wrong. Each other होना चाहिए. Raman and Meena like each other. Then you can notice that each other, one another is used as an object of verb and preposition. Now the next topic is reflexive pronoun. A student, when we use self or selves with my, our, your, him, her, it, them, these becomes reflexive pronoun and emphasizing pronoun. Very minor difference between reflexive pronouns and emphasizing pronouns. Reflexive pronoun is used for अपने आप को, and emphasizing pronoun is used for स्वयं या खुद को, आप ही को अर्थ में emphasizing pronoun का प्रयोग किया जा सकता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग हो सकता है, बट एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन केवल उस नाउन के साथ होता है जिसको कि वह एम्फेसाइज करता है. देयर आर सम रूल्स इन दिस टॉपिक which you can understand. Now rule number 1, myself for I, ourself for we, yourself for you,
himself for he, herself for she, itself for it, themselves for they are used. For example, you know that I hurt myself, she hurts herself, you hurt yourself or yourselves. If that is singular, yourself, plural, yourself. We hurt ourselves, they hurt themselves, it hurt itself. This is the correct use. रूल नंबर सेकेंड, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तो एम्फेसाइजिंग या रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, तब तो सीधे ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे ही नोज मी, यहाँ ही और मी दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। लेकिन यदि दोनों सेम रहते, अर्थात ही के लिए प्रयोग किया गया था, वहाँ मी न करके हिम का प्रयोग करना हो, तब तो गलत, वहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग करना होगा। ही नोज हिमसेल्फ, ये दोनों सेम प्रोनाउन हो गए। लेकिन जब अलग अलग हो गए ही और मी, तो फिर वहाँ माई सेल्फ गलत होगा, ही नोज मी सही होगा। आई लव यू, योर सेल्फ नहीं होगा, आई लव यू। नेक्स्ट रूल, देर आर सम वर्ब विच कम्स विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे कांट बी यूज, दे कांट कम। वो हमेशा उनके साथ प्रयोग करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही है। यूजुअली उनके बाद ही लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ये वर्ब है एंजॉय, प्राइड, absent, present, introduce, a well, address, plum, heart, cheat, prostrate, resign, appeal, acquit, assert, etc. For example, he enjoyed himself in the party. He enjoyed himself in the party. If you are writing he enjoyed in the party, this is not correct. This is half. This is not clear sentence. So then you have to use reciprocal. In the same way, the students must avail themselves of the opportunity. Without themselves, this sentence is not correct. But there are some verbs which can be written without reciprocal. They are open, sell, wash, dress, undress, save, concentrate, feel and hurry. They never comes with any reciprocal. इनके साथ रेसिप्रोकल का प्रयोग होता ही नहीं है, इनको किनारे रखा जाता है, कभी नहीं। द डोर ओपेंड इटसेल्फ नहीं होगा, द डोर ओपेंड ही होगा, खुद तो दरवाजा खुलता नहीं, खोला जाता है। ही सेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे, यहाँ हिमसेल्फ गलत है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हमने बताया कि ये वर्ब इनकी नीड नहीं होती कि इनको रेसिप्रोकल दिया जाए। नाउ रूल नंबर नेक्स्ट, रेसिप्रोकल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता ही नहीं है, इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी यूज करना होगा तो वहाँ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। यदि रेसिप्रोकल के बजाय हमको एम्फेसाइजिंग प्रयोग करते भी हैं तो उसके पहले कोई ना कोई नॉमिनेटिव केस होगा। फॉर एग्जांपल, माई सेल्फ इज मिस्टर ए के ठाकुर, गलत, ऐसा नहीं कह सकते। हम इसको इसी प्रकार करेंगे कि आई एम मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ए के ठाकुर। ही इज नॉट माई सेल्फ, ही इज मिस्टर ए के ठाकुर। नाउ विनय एंड योर सेल्फ और फ्रेंड, ये भी गलत है, विनय एंड योर सेल्फ नहीं होगा, विनय एंड यू और फ्रेंड। ओके,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। जहां एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत बनती है वहां ओन का प्रयोग करना चाहिए, OWN। जैसे ही सोल्ड हिमसेल्फ कार नहीं होगा, ही सोल्ड हिज ओन कार होगा, यहाँ ओन हिमसेल्फ कार नहीं होगा। आई हैव पेंटेड माई सेल्फ रूम नहीं होगा, आई हैव पेंटेड माई ओन रूम होगा। यानी ओन का प्रयोग, OWN ओन का प्रयोग होना डेफिनेट जरूरी है। नेक्स्ट रूल, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब और प्रीपोजिशन का प्रयोग हो या वर्ब तथा सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग हो तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस का। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ, माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ। लुक आफ्टर हर नहीं होगा, खुद के लिए हर सेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक है। नाउ द संत ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ। इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि खुद के सेंस में, स्वयं के सेंस में ही इसमें प्रयोग किया गया है। सिंपल सी बात है। वैसे रीडिंग करने से या राइटिंग करने से भी कभी कभी हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट तथा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दो अलग अलग व्यक्ति हों, खुद न हो, तब तो वहां रेसिप्रोकल का प्रयोग नहीं होगा। द प्रिंसिपल डिस्टर्ब द बुक्स एमॉन्ग देमसेल्फ, गलत है। द प्रिंसिपल डिस्टर्ब्ड द बुक्स एमॉन्ग देम होगा, नॉट डिस्टर्ब। द करेक्ट वेज, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स एमॉन्ग them, not themselves. Now next rule, by plus reflexive pronoun का प्रयोग alone, without help और without company के अर्थ में होता है। यदि by के साथ रिफ्लेक्सिव आता है तो वह alone, without help और without company के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। He likes to spend time by herself, मतलब अकेले। She can do all the work by herself, अकेले बिना किसी सहायता के। इंजॉय के बाद सामान्यतः ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से किया जाता है, जैसा कि पहले बताया भी जा चुका है कि वी एंजॉयड द पिकनिक लास्ट वीक नहीं होगा, वी एंजॉयड द पिकनिक आवरसेल्फ लास्ट वीक। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कीप, काउंसिल, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट एंड स्टे के बाद नहीं होता है। फिर से याद कर लेंगे, सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड। ये वर्ब कौन है? कीप, काउंसिल, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे। वर्ब्स के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, he qualified himself in the class. This is not wrong, this is not correct. He qualified in the test, he qualified in the class, क्योंकि क्वालिफाई के बाद रेसिप्रोकल नहीं आएगा। I stayed myself away from my class, गलत है, myself नहीं होगा, I stayed away from my class. Students, I taught you 2 topics. It was reciprocal and reflexive pronoun. Reflexive pronoun का प्रयोग ध्यान देना होगा। Okay. Now I will give you some practice set you have to do.